to please give us some your guidance, because we have proofs we have seen on the internet as well, wherein there was a newspaper cutting I would like to show to the audiences as well. And the risk of birth has been detected with IVF babies have come to a light that they are prone to various ailments if they were conceived and born through IVF treatments. So this was just a newspaper cutting, while there is also we have a proof. It is also mentioned in the internet also. There is a site called dailymail.co.uk wherein it has already clearly stated that IVF babies have twice the chance of defects. So we would request you to please show light and guide the people who are moving towards IVF and artificial treatment now. Double the chance of defects, it's nothing. It will keep on increasing. It will become 3 times, 4 times, 10 times, more than that also. Now, why I am saying it? You all know this. आप लोग सब जानते हो इस चीज़ को. Suppose you are feeling weak and you have facility, or you are well to do. So you have this opportunity to take rest. This opportunity is not there with people who are workers, daily wage workers. They don't have this opportunity to relax and rest. They have to work. But if you take rest, taking appropriate rest is okay. But beyond that, we have actually developed a lifestyle of going away from activity. वो कहते हैं ना, काम करने से दूर जाने के लिए हमारे पास आज हजारों बहाने. So we have chosen a lifestyle where we don't have to use our body. हमने एक ऐसा लाइफस्टाइल चूज किया है in terms of convenience. जो शुरुआत, it started with convenience. Now it has entered a phase of inactivity. Convenience से आगे बढ़ते बढ़ते inactive phase में हम आ चुके हैं. तो आपको मालूम है, आप जितना पड़े रहते आपका काम करने का मन उतना ही नहीं होता, और आप काम नहीं करते तो और काम करने का मन नहीं होता. आपको मालूम है, जो एक यंगस्टर जब जॉब ढूंढने जाता है तो बड़ा रिलक्टेंट होता है. वो डिले करता रहता है कि अच्छा ठीक है, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे. Unless until that kid is really pushed, और एक बार वो एक्टिविटी फेज में चालू हो जाएगा, देन उसके लिए that will become a kind of a lifestyle for that kid or for that person. But not, or going away from activity is what is you can call as natural human tendency. अब ऐसे में इंसान ना विशियस साइकिल में फंस जाता है. A human will do everything to find out technology, to find out other ways through which he or she doesn't have to push hard into that activity. Now, isn't that good? क्या ये सही नहीं है? So I'll give you an example. If you don't do anything for 3 days, you will get into a very dull state where you would not like to do anything, even a simple thing. But suppose somebody pushed you for some activity one day, you will see you'll be able to, not only you'll feel more energetic,
more active, but you will be able to do more work. तो काम नहीं करना, काम से भागने से उतना ही हमारा बॉडी कमजोर होता जाता है, काम करने पे हमारा बॉडी उतना ही एक्टिव होता है. So whenever we found out ways and means to automate or take support from something else, we should have cleared the barriers और उसका एक मॉडल हमें बना लेना चाहिए. Like we create a business model, we should have created a lifestyle model. The moment automation entered into our life, technology entered into our life. But आज हम अपने बिजनेस का तो मॉडल बनाते हैं मगर अपने लाइफस्टाइल का मॉडल नहीं बनाते हैं. ऐसा बेवकूफ कोई लाइफ देखी है आपने? एक जानवर भी इतना बेवकूफ नहीं होता. उसको भी आप ज्यादा आराम करने बोलेंगे तो नहीं करेगा, उसको मालूम है उसे एक्टिविटी से अच्छा लगता है. इट इज ह्यूमन जो अपने बिजनेस के लिए भी मॉडल बनाते हैं मगर अपने लिए मॉडल नहीं बनाते. हमने कभी लाइफस्टाइल मॉडल बनाया ही नहीं जहां पे हमें कल्चरली ये डालना चाहिए था कि टेक्नोलॉजी का आप इतना ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते, अदरवाइज यू विल बिकम इल, आप बीमार हो जाओ. तो ऐसा कुछ हमने बनाया नहीं, इसके ऊपर किसी ने काम किया ही नहीं. आज हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर, जहां पे हम लोगों को बोल रहे हैं कि दिस शुड बी योर लाइफस्टाइल, कुंभक शुड बी योर लाइफस्टाइल, इट शुड कम इन योर लाइफस्टाइल. बिकॉज आपका इस वक्त में सबसे कमजोर पक्ष क्या है? एफर्ट मेकिंग एबिलिटी. आपकी एफर्ट मेकिंग एबिलिटी बिल्कुल ही कम हो चुकी. तो एफर्ट मेकिंग एबिलिटी जब आपकी कम हो जाती है, यानी आप अपने आप को बैलेंस में लाने की आपकी क्षमता की बजाय आप कुछ यूज करते हैं अपने पैरामीटर्स को मेंटेन करने के लिए. हीलिंग, रिकवरी इज ह्यूमन बॉडी स्ट्रेंथ. रिकवरी स्ट्रेंथ ह्यूमन बॉडी का, उसको तो आपको बना के रखना चाहिए. अगर आप रिकवरी स्ट्रेंथ को ही खत्म कर देंगे और केवल पैरामीटर्स को हेल्थ के तौर पे देखेंगे और उस पैरामीटर्स को केमिकली आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे बताइए रिकवरी स्ट्रेंथ तो बढ़ा ही नहीं आपने, और ये तो लगातार कमजोर होती जाएगी. ये तो विशियस साइकिल में फंस गई है. जितना आप केमिकल यूज करेंगे, दवाइयों के सहारे अपनी रिकवरी या पैरामीटर्स को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, आपकी रिकवरी स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी. अभी आपको बहुत सारे ऐसे रिसर्च देखने को आए. आपको मालूम है कैंसर में जो रिलैप्स होता है वो कीमोथेरेपी की वजह से, डेथ होती है वो कीमोथेरेपी की वजह से. इनफैक्ट ये सभी जगह है. डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन मेडिसिन की वजह से होते हैं. हार्ट अटैक दवाइयों से होता है. इट इज अ रिजल्ट ऑफ मेडिसिन. बिकॉज हार्ट, अभी आप देखो, मैं एक एग्जांपल प्रूव करता हूं आपको, जो बताया कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो पूरा का पूरा ड्रेन आउट हो गया बीपी का मेडिसिन देने की वजह से. आपको मालूम है बीपी कैसे कंट्रोल होता? आपके बॉडी का वाटर कम करके आपके शरीर में पानी निकाल देते हैं, और इसको बड़ा अच्छा नाम देते हैं, डाईयूरेटिक बोलते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं, एस इनहिबिटर कहते हैं. हाइड्रोक्लोरोथायराइड डाईयूरेटिक है, एस इनहिबिटर, लोसाटन पोटेशियम, टेलमिसाटन पोटेशियम, लोसाकार, तोजार, रिपेस, कोएंस, टेल्मा, ऐसे ऐसी दवाइयां आपको मिलेंगी. ये आपके शरीर से पानी निकाल देती है. और क्योंकि आप पैरामीटर्स को ही सब कुछ मान रहे हैं, तो पानी निकालने के बाद में इसकी जान निकल गई, इसका ब्लड प्रेशर क्या रहेगा? इसका तो लाइफ सस्टेन करने की क्वालिटी भी कम हो जाएगी. ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, आप कहते हैं देखो हमने मेंटेन कर, क्योंकि आप पैरामीटर्स को हेल्थ मानते हैं. पैरामीटर्स कोई हेल्थ नहीं, आप पैरामीटर्स में डालने की कोशिश कर रहे हो इस बॉडी को, और उस चक्कर में ये बॉडी का विनाश होगा. तो आपने ब्लड प्रेशर तो इसका कम कर दिया, मगर कम कैसे किया? पानी निकाल के. आपके शरीर में से जब भी पानी डिहाइड्रेट होगा, जब भी आपके शरीर डिहाइड्रेट होगी, आपके हार्ट पे लोड आता है. इतना लोड डालोगे एक बार तो ये कोलैप्स हो जाएगा आपका हार्ट.
तो हार्ट अटैक किससे आपने क्रिएट किया? पानी निकाल के हार्ट अटैक क्रिएट किया आपने? अगर आप शरीर का पानी निकालते हो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? वो भी तो पानी है, मेजर पार्ट तो उसका पानी है। आपको आपने पानी वहां से भी ड्रेन आउट कर दिया। और लाइफ का नियम है, एक लेवल तक ये अपने आप को सेटल करने की, वापस रिकवर करने की कोशिश कर, उससे ज्यादा ये कोलैप्स हो जाता है। केमिकल से जब भी आप बॉडी के पैरामीटर्स को मेंटेन करने की कोशिश करोगे तो उसकी कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसका बस नहीं चलता। क्योंकि आपने किसी को बेहोश करके जबरदस्ती कोई ड्रग देके कोई काम करवाने की कोशिश करो, उस बेचारी की तो हालत खराब हो जाएगी। आप किसी को ड्रग देके अपना काम करवाने की बार बार कोशिश करो, एक बार गिव अप कर देगा। ज्यादा टाइम ऐसा ही होता है कि ड्रग लेने वाला बंदा ड्रग एडिक्ट बन जाता है और वो गिव अप कर देता है लाइफ को। आपका शरीर ड्रग एडिक्ट हो चुका है और उसने गिव अप करना अब उसके लिए आसान है, रादर देन रिकवर। एक ड्रग एडिक्ट को आप रिकवर करवाना चाहते हो, आपको पता है कितना जोर लगाना पड़ता है। आपका शरीर इस वक्त में ड्रग एडिक्ट है और इसकी रिकवरी की स्ट्रेंथ बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। इसकी रिकवरी की स्ट्रेंथ अगर इतनी खत्म हो चुकी है तो आप बताओ आपकी लाइफ कैसी? तो क्या किया हमने? आपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश की। ब्लड प्रेशर में तो मेंटेन तब होगा ना जब बॉडी में स्ट्रेंथ होगा, उस प्रेशर को झेलने का स्ट्रेंथ होगा, तब वो मेंटेन हो जाएगा। तब कितना भी प्रेशर आ जाए आपका बॉडी कोलैप्स नहीं करेगा, रिकवर कर जाएगा। मगर इनफैक्ट आप बॉडी के सेंसिटिविटी को बढ़ाने की जगह, रिकवरी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जगह, आप इनसेंसिटिव बना के केवल अपने आइडिया पे उसके पैरामीटर्स को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आईवीएफ डबल, आपको क्या लगता है ह्यूमन सिस्टम कमजोरी की तरफ जा रहा है या स्ट्रांग होने की तरफ में जा रहा है? इसकी रिकवरी स्ट्रेंथ तो वीक, एवरी ईयर इट इज गोइंग टुवर्ड्स वीकनेस। तो अभी तो डबल है, कल को ये 10 गुना होगा, फिर 100 गुना होगा, उसके बाद बैन करना पड़ेगा, आईवीएफ करना ही नहीं है जी। मगर तब तक तो बच्चे भी नहीं पैदा कर पाए, तब तक बॉडी इतना ड्रग एडिक्ट हुआ कि वो उसके लिए रिकवरी विल बिकम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो क्या हम मास ह्यूमन कोलैप्स की तरफ में जा रहे हैं? हम मास ह्यूमन कोलैप्स की तरफ में जा रहे हैं, just with a simple wrong idea, just with white man's burden, we are going towards collapse. क्या आपको आईवीएफ करा के करना चाहिए? आप खुद तो पैदा नहीं कर रहे। देखिए कैच कहां पे है, आप खुद नहीं कर पा रहे तो आपको ऑप्शन ही यही दिया जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहें आपसे? हम तो यही कहेंगे कि फर्टिलिटी, या फिर ये कह लो कंसेप्शन, फर्टिलिटी, ग्रोइंग अप अ बेबी इन द वूम, ये आपके शरीर का स्ट्रेंथ है। दिस इज योर बॉडीज प्रेरोगेटिव। दो गुना प्रोन है क्रॉनिक एलिमेंट के, 10 गुना होगा तो आपका एक बेबी बीमार पैदा होगा, आप तो परेशान हो गए, वो बेबी कितना परेशान होगा अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को ठीक से नहीं जी पाएगा। पहले तो आप अपने आप को केपेबल बनाइए, और आपके बाहरी स्ट्रेंथ से ज्यादा अंदरूनी, बाहरी स्ट्रेंथ तो कमजोर हो गया मगर अंदरूनी स्ट्रेंथ, ऑर्गन फंक्शनिंग बहुत वीक है, ऑर्गन बहुत वीक है। उसको स्ट्रॉन्ग करना है तो कुंभक को इस्तेमाल करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। आपका फूड आपको स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकता, आपका बॉडी ही स्ट्रॉन्ग करेगा। अगर उसका रिकवरी स्ट्रेंथ कम है तो कितना ही अच्छा फूड खा लो, कुछ भी नहीं होगा। उसका रिकवरी स्ट्रेंथ अगर अच्छा है, वही फूड ऐसा लगेगा कि काम कर रहा, और फूड काम नहीं कर रहा, अल्टीमेटली आपके शरीर की रिकवरी स्ट्रेंथ ही काम कर रही। इसको बढ़ाएं, तभी आपका फूड भी काम करेगा, तभी आपका नेचुरल मेडिकेशन भी काम करेगा, तभी आपका शरीर भी किसी बेबी को ग्रो कर पाएगा। और कोई ऑप्शन नहीं है।
आंखें खोलिए।